اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ آج تیسرے مرحلے کی پولنگ ہے، تیاریاں تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ مہاراشٹر سمیت آج 11 ریاستوں میں 93 لوک سبھا حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ حفاظتی اقدامات سخت کر لیے گئے ہیں۔ مغربی مہاراشٹر، مراٹھواڑہ، کوکن علاقے کی 11 نشستوں پر آج پولنگ ہوگی۔ خاص طور سے مہاراشٹر میں ووٹر سپریا سولے سمیت کئی بڑے سیاستدانوں کی قسمت کا فیصلہ آج ووٹرز کریں گے۔ بس دعا کیجئے کہ لوگ دھرم کی گھٹیا قسم کی راجنیتی جو بی جے پی کر رہی ہے، لوگ اس کو سمجھ جائے اور لوگ اپنے دیش، اپنے سنویدھان کو بچانے کے لیے ووٹ کرے، لوگ اپنے دیش سے بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے ووٹ کرے، لوگ اپنے دیش سے کسانوں کی آتم ہتیا کو روکنے کے لیے ووٹ کرے اور مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے ووٹ کرے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر دیش سچ مچ آگے بڑھے گا۔ اور لوگوں نے اگر مندر مسجد کے نام پر ووٹ کیا اور دھرم کے نام پر ووٹ کیا اور یہ سوچ کر ووٹ کیا کہ جو رام کو لائے ہیں ہم ان کو لائیں گے، تو پھر یاد رکھیں کہ دیش کا ستیاناش ہو جائے گا۔ اور آج اسی تیسرے مرحلے میں امیت شاہ، ڈمپل یادو، دگ وجے سمیت کئی بڑے رہنماؤں کی قسمت داؤ پر ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ابھی سنویدھان کو بچانے کی نیت سے اور ملک سے نفرتوں کو ختم کرنے کی نیت سے ووٹ نہ کیا جائے تو پھر ملک کی قسمت داؤ پر ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں، اندھ بھکتی اور گوبر بھکتی میں لت پت ہو کر ووٹ کا استعمال نہ کریں۔ ناظرین بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے، جی آپ کو یاد ہوگا کہ نریندر مودی نے شروع میں 400 پار کا نعرہ لگایا تھا، بی جے پی نے 400 پار کا نعرہ لگایا تھا، مگر سماجوادی پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور پروکتا پروفیسر رام گوپال یادو نے دعویٰ کیا کہ انڈیا اتحاد نے، انڈیا الائنس نے مودی کے 400 پار کے نعرے کی ہوا نکال دی ہے۔ اس لیے پارلیمانی الیکشن میں بی جے پی 400 تو دور 200 سیٹیں بھی حاصل کرتی ہے یا نہیں، بالکل صاف سمجھ میں آ رہا ہے۔ خیر اب مودی جی کی ہوا نکل گئی ہے سچ مچ، اور مودی جی بھی اپنی ہار اور شکست کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے مودی جی اب سیدھا گٹر لیول کی نفرتی زبان پروس رہے ہیں اور ہندو مسلمانوں کا گھٹیا قسم کا نفرتی کارڈ کھیل رہے ہیں، اس لیے کہ مودی جی کو اپنی شکست، اپنی ہار صاف نظر آ رہی ہے۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ مہاراشٹر کی بہت ساری کمپنیاں
भी गुजरात चली गई। महाराष्ट्र को खत्म करने की नापाक साजिशें नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बीजेपी ने जो किया है वो मराठियों को अब खुल्लम खुल्ला समझ में आने लगा है। और इसी दौरान एक बड़ी खबर सामने आ गई कि गुजराती कंपनी ने मराठियों को नौकरी नहीं देने की बात की, जिस पर जबरदस्त हंगामा हुआ और उस हंगामे के बाद कंपनी की एचआर ने मामले को तूल पकड़ता देखकर माफी मांग ली है। गुजरात की एक कंपनी ने नौकरी का विज्ञापन इश्तिहार शाये किया और उसमें कंपनी के मैनेजर ने क्लियर तौर पर लिखा कि मराठी उम्मीदवार तकलीफ न करें। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और मामले को तूल पकड़ता देखकर एचआर मैनेजर को इस मामले में माफी मांगनी पड़ी। गुजरात की फ्रीलांस एचआर कंपनी ने जो ग्राफिक डिजाइनर की पोस्ट के लिए मुंबई में एक नौकरी की जगह का इश्तिहार किया और उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि मराठियों को नौकरी नहीं दी जाएगी, वो कोशिश न करे। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद जबरदस्त अंदाज में मराठी भाइयों ने हंगामा किया और फिर हंगामा ऐसे हुआ कि इनको माफी मांगनी पड़ी। लेकिन यह तो क्लियर सामने आ गया है कि गुजरात और गुजराती किस तरीके से मराठी और महाराष्ट्र को खत्म करना चाहते हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आप जानते हैं कि कर्नाटका का एक रेपिस्ट जिसके प्रचार करने के लिए खुद बड़ी बेशर्मी के साथ नरेंद्र मोदी गए थे, और ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी को मालूम ना हो, सारे सबूत बता रहे हैं कि ये रेपिस्ट है। ये सारी चीजें नरेंद्र मोदी को मालूम थी और पार्टी के लोगों ने बकायदा उस रेपिस्ट को उम्मीदवार बनाए जाने पर नाराजगी का इजहार भी किया था, विरोध भी किया था। इसके बावजूद भी बड़ी बेगैरती और बेशर्मी की मोटी चादर ओढ़कर नरेंद्र मोदी उस रेपिस्ट का प्रचार करने के लिए कर्नाटक गए, जिससे पता चलता है कि मोदी का बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा झूठा है और नारी शक्ति का नारा झूठा है, महिला विकास का नारा झूठा है। इस वक्त कांग्रेस ने प्रज्वल रेवन्ना इस रेपिस्ट के मामले पर पीएम मोदी और अमित शाह से 10 सवालात पूछे हैं, जिसके जवाब अमित शाह और मोदी के पास नहीं है। और अब कांग्रेस ये भी कह रही है कि मोदी और अमित शाह ने इस रेपिस्ट को मुल्क से भागने क्यों दिया। अगर ये चाहते तो रेपिस्ट मुल्क से भाग नहीं सकता था। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र की एक खलबली वाली खबर इस वक्त मेरे निगाहों के सामने है कि 6 प्रेशर कुकर बम, 9 आईईडी बरामद हुए हैं, मिले हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा इलेक्शन से पहले नक्सली हमले की मंसूबाबंदी नाकाम बनाई गई है। बताया जा रहा है कि गडचिरोली में लोकसभा इलेक्शन के तीसरे मरहले से एक दिन पहले सिक्योरिटी फोर्सेज ने माओ नवाजों की एक बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया। पुलिस ने 6 प्रेशर कुकर बम, भारी मकदार में धमाका खेज मवाद और 9 आईईडीज को तबाह कर दिया। मकामी पुलिस को इत्तला मिली थी कि इलेक्शन के दौरान नक्सल आईईडी से बड़ा हमला कर सकते हैं। इसके लिए टीपागढ़ में कुछ धमाका खेज मवाद और मिट्टी की बारूदी सुरंगें छिपा कर रखी गई है। इत्तला मिलने के बाद भी धमाका खेज मवाद कहां रखा गया था इसका पता नहीं चल सका। लिहाजा 2024 के आम इलेक्शन में नक्सलियों की किसी भी मुमकिन साजिश को नाकाम बनाने के लिए पूरे इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी तैनाती की गई थी। और फिर गुज़िश्ता कल ये बड़ी चीज सामने आई है, 6 प्रेशर कुकर बम और 9 आईईडी बरामद हुए हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त अमेठी से आ रही है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता कल देर रात अमेठी में कांग्रेस के ऑफिस पर मुबैना तौर पर हमला किया गया, कारकुनों की पिटाई की गई और दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी हुई है। दर्जनों गाड़ियों को तोड़ दिया गया है। हमले के बाद तस्वीर और वीडियो शेयर करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर बराह रास्त इल्जाम लगाया है कि बीजेपी इंतखाबात में शिकस्त के खौफ से घबरा गई है और इसी वजह से कांग्रेस के दफ्तर पर हमला किया गया है। ट्विटर पर पोस्ट पर एक पैगाम में यूपी कांग्रेस ने कहा है कि शिकस्त से घबराई बीजेपी कारकुनों ने अमेठी में इंतजामिया की मौजूदगी में कांग्रेस के जिला ऑफिस के बाहर खड़ी दर्जनों गाड़ियों पर तोड़फोड़ की। जिला सदर प्रदीप सिंगल जी दफ्तर में ही मौजूद थे। बदमाशों को वहां से भगा दिया गया, लेकिन पुलिस
तमाशाई बनी रही। यही वजह है कि कांग्रेस कारकुन राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं। इस मामले में गौरीगंज पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि तहकीकात के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, इस वक्त रांची से, झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि हेमंत सोरेन और ऐसे ही केजरीवाल, इन दोनों को यानी दो मुख्यमंत्रियों को बीजेपी ने जेल के सलाखों में डाल दिया है। और इलेक्शन से पहले, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किया केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कि आखिर इलेक्शन से पहले ही केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया। तो आप और हम सब जानते हैं कि बीजेपी सत्ता का नापाक और नाजायज शैतानी इस्तेमाल कर रही है और अपोजिशन पार्टियों को दबाने कुचलने के लिए सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करके उन्हें जेलों में ठूस रही है। अब यह खबर आ रही है कि गुज़िश्ता कल एक दिन के लिए जेल से बाहर आए हेमंत सोरेन की शक्ल देखकर सभी हैरान हो गए। सफेद दाढ़ी में हेमंत सोरेन का अक्स नजर आया और सफेद पूरी दाढ़ी बढ़ गई है। इसको देखकर सभी लोग अचंभे और हैरत में पड़ गए। बताया जा रहा है कि 6 मई को यानी एक दिन के लिए हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले। वो पुलिस की हिरासत में ही है, लेकिन उन्हें उनके चाचा राजाराम सोरेन के श्राद्ध में शिरकत की इजाजत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें पुलिस हिरासत में इस तकरीब में शामिल होने की इजाजत दी है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ने शहीद हेमंत करकरे को लेकर एक सवाल खड़ा किया और साफ तौर से कहा कि हेमंत करकरे के जिस्म में जो गोलियां थी वो अजमल कसाब ये दहशतगर्दों की नहीं थी, बल्कि आरएसएस समर्थक एक पुलिस वाले की चलाई हुई गोलियां थी। और अब ये भी खबर आ रही कि एसएम मुशर्रफ ने साफ तौर से ये कहा है कि उज्जवल निकम जो सरकारी वकील है, इस मामले के वो सरकारी वकील थे, उन्हें लोगों को सच बताना चाहिए। दहशतगर्दाना हमले में 3 पुलिस एहलकार हमारे शहीद हुए थे। हेमंत करकरे उनमें से एक थे। अदालत में साबित हो चुका है कि उन्हें दहशतगर्द अजमल कसाब ने मारा था, लेकिन कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार के बयान के बाद यह मसला फिर से बहस में आ गया है। और उन्होंने एसएम मुशर्रफ की किताब को सामने रखते हुए कहा है कि हेमंत करकरे अजमल कसाब या पाकिस्तानी दहशतगर्दों की गोलियों से नहीं मरे थे, बल्कि उन्हें हमारे अपनों ने ही मारा था। नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त घाटकोपर मुंबई से आ रही है कि गुजरातियों ने मराठियों को बिल्डिंग में घुसने नहीं दिया। घाटकोपर में शिवसेना महाविकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे के कारकुनान के हंगामे के बाद 2 लोगों को अंदर जाने दिया गया। बताया जा रहा है कि गुजरातियों की मराठियों से नफरत एक बार फिर सामने आ गई है। मुंबई शिमाल मशरकी मुंबई लोकसभा हल्के के घाटकोपर में गुजरातियों ने इमारत में मराठियों को घुसने नहीं दिया। इस मामले के बाद गुजरातियों की मराठियों से नफरत एक बार फिर मंजरे आम पर आ गई है। मराठी शिवसैनिक मर्द और खवातीन कारकुनान जो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार संजय दीना पाटिल की इंतखाबी मुहिम के पंफलेट तकसीम करने के लिए इमारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें वहां गुजरातियों ने रोक दिया। काफी बहस और हंगामे के बाद पंफलेट तकसीम करने के लिए इमारत में 2 शिवसैनिकों को मराठियों को दाखिल होने दिया गया। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त में निगाहों के सामने आ रही है। अरविंद जी केजरीवाल, जिन्हें बीजेपी ने नाजायज तरीके से जेल की सलाखों में ठूंस दिया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद हुकूमत से जवाब मांगा है कि बताओ आखिर इलेक्शन से पहले ही केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया गया। आप जानते हैं कि बीजेपी नरेंद्र मोदी एक डरा हुआ इंसान है, अपनी हार को लेकर, शिकस्त को लेकर खौफजदा और सहमा हुआ इंसान है, जो बाकायदा अपोजिशन लीडरान को सीबीआई और ईडी के जरिए से जेल की सलाखों में ठूस रहा है। खैर, केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती जा रही है, क्योंकि केजरीवाल पर खालिस्तानी दहशतगर्द तंजीम से फंड लेने का नया इल्जाम भी लग गया है। दिल्ली के एलजी की वजीर आला दिल्ली के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश सामने आई है। केजरीवाल पर यह इल्जाम आयद किया जा रहा है कि उन्होंने खालिस्तानी दहशतगर्द तंजीम सिख
फॉर जस्टिस से फंड हासिल किया था। इस सिलसिले में एलजी विनय कुमार सक्सेना को एक शिकायत मिली थी जिसके मुताबिक उस दहशतगर्द तंजीम से केजरीवाल की क़यादत वाली आम आदमी पार्टी को 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिले। इल्जाम है कि यह रकम देवेंद्र पाल गुज्जर की रिहाई में मदद और खालिस्तानी नजरियों को फरोग देने के लिए मिली थी। यानी यह भी एक इल्जाम केजरीवाल पर लग गया है। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट। किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट